Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm Rangabashyam and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के साथ हम खास तौर से आपके साथ बातचीत किया करते हैं म्यूचुअल फंड्स पर। यदि आप पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ हमसे कोई भी सवाल, तो सादर आपका स्वागत है। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं देश के जाने माने म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं एस रंगाबाश्यम। Thank you, Manoj. The top stories. Foreign portfolio investors pumped nearly 8,000 crore rupees into Indian equities in just 4 sessions of June. Paddy and wheat procurement sets new record in the ongoing Kharif season. And Income Tax Department to launch new e-filing portal tomorrow. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस वर्ष जून के पहले 4 सत्रों में भारत के इक्विटी बाजार में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। खरीफ के चालू मौसम में किसानों से धान और गेहूं की खरीद का नया रिकॉर्ड बना और आयकर विभाग कल नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करेगा। पिछले 2 महीनों में शुद्ध निकासी के बाद विदेशी निवेशकों ने जून के पहले 4 सत्रों में भारत के इक्विटी बाजारों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। जमाकर्ताओं के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआईज की ओर से 1 से 4 जून के बीच भारतीय इक्विटी बाजार में 7,968 करोड़ रुपए और उधारी बाजारों में 22 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। ऐसा मई में 2,954 करोड़ रुपए और अप्रैल में 9,659 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी के बाद हुआ है। अप्रैल से पहले विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान इक्विटी में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें निवेशक 2021 के पहले 3 महीनों में 55,741 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल था। इस साल अब तक एफपीआई ने इक्विटी में 51,094 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन उधारी बाजार से 17,300 करोड़ रुपए निकाले भी हैं। Well, let's start taking phone calls, and joining us very first on the program today is BV Nangla from Gurugram in Haryana. Good evening, Mr. Nangla, and welcome to the program. No, I'm Bharat Bhushan Narula from Gurgaon. Okay. स्वागत yes, आपका। Mr. Narula. Welcome to the program, Mr. Narula. Go ahead, put your question. Yeah, I had asked a question last week also on Sunday, and that was related to the redemption of 3 different funds, and my question was that whether this would be treated or it would be treated as a debt fund. Now there was some problem in the signal, though I got the recorded message. My next question was that how do you determine the index values in case of a debt fund? Okay. Index value. In case of debt fund, the indexation actually works on a financial year basis. Every year, the income as part of after the budget. In the budget, it is announced and you have to see that on a financial year basis, what has been the appreciation for a period of 3 years and more in your investment, and after adjusting that gain for the index, whatever is the gain on that you pay 20%, and this is a simple rule. It is not done on a day-to-day basis. It is done on a financial year basis.
So if you invest on 30th of March and 3 years from now, but after 1st of April, 3 years from now, you take your money out, it'll actually get an indexation of 4 years. Right. And let's take a look at some of the other news items before we take more phone calls. Minister of State in Prime Minister's office, Dr. Jitendra Singh, has called for a strong and aligned international cooperation to combat the challenge of fugitive economic offenders and assets. He said India has made it clear that the world is presently combating another serious emerging challenge of fugitive economic offenders who flee across national jurisdictions. He called for a strong international cooperation on the return of persons and assets sought for such offences, consistent with international obligations and domestic legal systems. The minister said the accused take shelter in foreign countries and conceal the proceeds of crime in complex legal structures spread over different countries. He said the gaps and weaknesses of international cooperation in this area are fully exploited by such fugitives to their advantage. हमारे साथ इस बीच फोन लाइन से दिल्ली से जुड़े हैं वरुण कुमार। वरुण जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, हमारा वो धीरेन्द्र जी से 2 सवाल हैं सर। जी जी। हम कह रहे कि जैसे हम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में जैसे फंस गया था, तो अभी उसके पैसे आ रही है, तो अभी हम मनी मार्केट में पैसे पार्क करके रखा हुआ हूँ, लेकिन मैंने उसमें 5 फंड में रख दिया हूँ, जैसे HDFC, ICICI, कोटेक और बिरला सन लाइफ मनी मार्केट और SBI सेमी फंड में। दूसरा सवाल है हमारा, DSP मिड कैप और SBI स्मॉल कैप में 4-4 हजार का SIP चल रहा है और लॉन्ग टर्म 15 साल से ऊपर का होराइजन है, और मैंने बिरला सन लाइफ फ्रंट लाइन इक्विटी जो लार्ज कैप था तो वो मैं बंद कर दिया हूँ। तो हमें एक लार्ज और मिड कैप में कोई फंड बता दीजिएगा, और हमें SI में अमाउंट बढ़ाना है तो इसी फंड में करें या मतलब दूसरे फंड में करेंगे? ओके, फाइन। और मनी मार्केट में हमें बता दीजिएगा, ये मैं 5 फंड में रखे हूँ तो एक फंड में रखना चाहिए या सही है? नहीं, आपके ढेर सारे सवाल हैं। मुझे इसके पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब देता हूँ। बिल्कुल, फ्रैंकलिन में के डेट फंड में लोगों का पैसा फंसने से लोग काफी डरे हुए थे और डरना काफी स्वाभाविक भी है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए था कि वो एक ऐसे समय में वो एक क्राइसिस हुआ, और आपने देखा होगा कि फ्रैंकलिन में लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, और उम्मीद है कि शायद नुकसान नहीं होगा। और इस सप्ताह में भी आपको कुछ पैसा मिलने वाला है। फ्रैंकलिन ने अनाउंस किया है कि कल शायद पैसा अलग अलग स्कीम में, जो 6 स्कीम है उसमें अलग अलग अनुपात में आपको पैसा मिलेगा। फ्रैंकलिन के फंड में अभी तक लोगों का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो जो स्थिति बनी थी उसमें लोगों के लिए चिंतित हो जाना काफी स्वाभाविक है, और उस चिंता से बचने का ये तरीका नहीं है कि आप 5 मनी मार्केट फंड में पैसा लगाएं, क्योंकि ये बहुत 2-3 1-2 अच्छे फंड में पैसा लगाएं। मनी मार्केट फंड में उस तरह से पैसा फंसने की संभावना नहीं है। और वो जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड था और वो जो डेट फंड थे जिनका की कॉर्पोरेट डेट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, वो एक अजीब सी स्थिति बनी थी जिससे पैसा फंसा था। लेकिन कुछ अच्छे फंड में लगाइए। केवल पैसे को अगर बहुत जगह फैला देते हैं तो वो अपने आप में कोई रिस्क रिडक्शन का रिस्क कम होता है, लेकिन वो बहुत ही साइंटिफिक तरीका नहीं है या मेथोडिकल तरीका नहीं है अपने रिस्क को कम करने का। दूसरा कि आपने जो एक फ्रंट लाइन इक्विटी बंद किया है और ये जो एक मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में आपका निवेश जारी है, उसको जारी रखिए। और मेरी हमेशा सलाह होती है, ये वो स्मॉल कैप और मिड कैप अगर आप उसके गिरावट से अगर आपका संतुलन नहीं बिगड़ता है, अगर आप उसकी वजह से आप घबरा के पैसा अपना नहीं निकालते हैं, तो अपना निवेश निश्चिंतता से जारी रखिए। और उसका एक उदाहरण आया होगा कि अगर आपने पिछले साल मार्च 2020 में अगर आपकी नींद नहीं उड़ी थी तो आप निवेश अपना उसमें जारी रखिए, क्योंकि जो 15 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपका फायदा ही होगा। और किस तरह के फंड में एडिशनल लगाना चाहिए? एक मल्टी कैप फंड में पैसा लगाइए, जो कि या फ्लेक्सी कैप फंड जिन्हें अभी पॉपुलरली कहा जाता है, उसमें पैसा लगाइए जिसमें कि फंड मैनेजर को आजादी होगी हर जगह पैसा लगाने के लिए।
हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड क्षेत्र के देश के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार, और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ तो निसंकोच डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7106 या 2371-7117। हम आमंत्रित करना चाहेंगे अब मुंबई से किरण जी को। किरण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, अगर इंडेक्स फंड में SIP करना है तो डायरेक्ट AMC से करने का कि निफ्टी 20 लेना अच्छा रहेगा? आप जैसे किसी भी आम निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड में SIP करना किसी ओपन एंड फंड में वो बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 20 में करेंगे तो आपको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब पता नहीं आपके ब्रोकर के यहाँ उसका प्रावधान है कि नहीं कि आप SIP एक खास तरीके को एक खास अमाउंट का एग्जीक्यूट कर पाए कि नहीं। उसके अलावा जब भी आप ETF खरीदते हैं तो उसमें एक उसको म्यूचुअल फंड खरीदने जैसा, जो इसमें क्या आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि 10,000 रुपए का मुझे 15 तारीख 5 तारीख को हर महीने के 5 तारीख को मुझे इतना खरीदना है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि उस दिन बाजार खुलेगा आप और उसको आप शेयर की तरह खरीदते हैं, और कई बार यहाँ पे इनएफिशिएंसी भी होता है। कई बार ETF अपने NAV से ऊपर या NAV से नीचे मिलता है। तो मेरी सलाह होगी कि सुविधाजनक तरीके के लिए इंडेक्स निफ्टी के फंड में लगाएं, और बहुत सारे निफ्टी के ऐसे फंड हैं जहाँ पे बहुत कम खर्चे पे आपको ये उपलब्ध है। अगर आप SBI का निफ्टी का, अगर आप ये निफ्टी का रेगुलर प्लान का ETF एक फंड ऑफ फंड है जिसको देखें तो वो बहुत ही कम 10 बेसिस पॉइंट के खर्चे पे वो उपलब्ध है। उसके अलावा 10 से 20 बेसिस पॉइंट पे तो ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, और जितनी आसानी से आप SIP कर पाते हैं वो एक, मुझे लगता है, एक बड़ा एडेड प्लस है। Right, let's take our next caller. We are now joined by RM Mathur from Noida in Uttar Pradesh. Good evening, Mr. Mathur. धीरेन्द्र जी का बहुत बहुत आभार और टीम को बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। अपना सवाल पूछिए। 65 साल की उम्र में पिछले साल NPS अकाउंट खोला था। 10 लाख FD अभी मैच्योर होने पर Tier 2 में डालने को सलाह चाहिए, क्योंकि यहाँ 12% रिटर्न है, और हर साल 1 लाख की निकासी करने पर TDS क्या कितना टैक्स बनेगा समझा दीजिए। कोई दूसरी इनकम नहीं है और कोई टैक्स ब्रैकेट भी नहीं है। NPS का टैक्सेशन, क्योंकि आपकी आवाज जो आ रही थी वो काफी गूंज रही थी, मैं बारीकी से नहीं सुन पाया। मनोज जी, जरा आप इनका सवाल दोहराएंगे मेरी ये समस्या हम सभी को रही है। वो पूछना क्या चाह रहे थे बहुत स्पष्ट हम समझ नहीं पाए, गूंजती हुई आवाज मिली है हम तक। हम आग्रह करेंगे कि माथुर साहब एक बार फिर से हमें कॉल कर लें। इस बीच हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। Sure. Well, the Income Tax Department will launch its new e-filing portal, www.incometax.gov.in, tomorrow. The new e-filing portal is aimed at providing convenience and a modern, seamless experience to taxpayers. Finance Ministry said the new taxpayer-friendly portal is integrated with immediate processing of income tax returns and quick refunds to taxpayers. All interactions and uploads or pending actions will be displayed on a single dashboard for follow-up action by taxpayers. It said free of cost ITR preparation, a software available with interactive questions, will help the taxpayers. The ministry said taxpayers will be able to proactively update their profile to provide certain details of income, including salary, house property and profession, which will be used in pre-filling their ITR. The Finance Ministry said the new tax payment system will be launched on 18th of June after the advance tax installment date to avoid any taxpayer inconvenience. The mobile app will also be released subsequently to the initial launch of the portal to enable taxpayers to get familiar with the various features. आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर। जी स्वागत आपका। हाँ सर, मेरे पास एक फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड जी, डायरेक्ट ग्रोथ एग्रेसिव। ओके, ये फंड कैसा है, ये इसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिए, और मुझे 2-3 इक्विटी फंड बताइए जिससे कि हम उसमें SIP स्टार्ट कर सकें। SBI का इक्विटी हाइब्रिड ग्रोथ, इसमें
काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दिखा है और ये जनवरी 2013 में इस फंड की शुरुआत हुई थी और उसके बाद इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है 7 साल में। और इस निवेश में और किसी भी शुरुआती निवेशक के लिए इस तरह का फंड अच्छा होता है जो बाजार गिरने पे बहुत रफ्तार से नहीं गिरता है और बाजार बढ़ने में ठीक ठाक तरीके से बढ़ भी पाता है। और यहाँ पे नए निवेशकों का विश्वास जमाने में ये काफी मददगार साबित होता है। तो इसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं तो और अगर आप कई सालों से कर रहे हैं 3-4 साल हो गया तो अब आप इक्विटी फंड में पैसा लगाइए। ये शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा फंड है। अगर इस उतार चढ़ाव से अगर आप परेशान नहीं होते हैं तो अब 2-3 साल के बाद लोगों को लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। Well, listeners, you are tuned in to the Sunday edition of Market Mantra on AIR FM Gold. And on Sundays, we focus exclusively on mutual fund and related issues. And as always, we have our mutual fund expert, Dhirendra Kumar, to answer all your questions, queries and doubts related to mutual funds and other related issues. And just to remind our phone numbers, we have 3 dedicated lines. Our phone numbers are 2331 4444, 2371 7106, and our third line is 2371 7117. And if you're calling from outside Delhi, you will have to prefix the STD code of the capital, that is 011 before the numbers. हमारे साथ एक और श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हम आग्रह करेंगे कि नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद वजीर साहब। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हेलो। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं वजीर साहब, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, पिछले दिनों कोरोना के कारण जो विदेश के लोग मार्केट से जो बहुत सारे पैसे निकाल लिए, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि क्या इस निकालने से क्या हमारे मार्केट पे कोई इसका असर बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा? जी हाँ, निवेशकों के पैसा बहुत रफ्तार से निकालने से बाजार पे उसका असर पड़ता है। लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, जो दुनिया भर के जो रिजर्व बैंक है, जो के इक्विवेलेंट जो है सेंट्रल बैंक, उन लोगों ने इतना ज्यादा लिक्विडिटी उपलब्ध कराया, इतना ज्यादा नोट छाप के लोगों के पास पहुंचाया है, के पास उपलब्ध कराया है कि पैसा निकला नहीं है, बल्कि पैसा लगातार आ रहा है। अगर आपने देखा भी होगा कि शुरुआत के महीने में पिछले साल मार्च अप्रैल में थोड़ा पैसा जरूर निकला था, लेकिन उसके बाद लगातार पैसा आता ही रहा है। बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, घरेलू निवेशकों का पैसा भले ही निकला हो या आने का रफ्तार उसमें कमी आई हो, लेकिन विदेशी निवेशकों का पैसा निकलना आना जारी रहा है। हो सकता है भविष्य में अगर ब्याज दरें बढ़े और वहां पे अगर ब्याज दरों में जिस तरह की गिरावट आई थी वहां पे किसी भी तरह की बढ़ोतरी हो तो पैसा निकलेगा, लेकिन अभी तक पैसा आने का सिलसिला जारी रहा है, जिस वजह से बाजार गिरा नहीं बल्कि बढ़ा है। Right, and joining us next is Vikram Singh from Rewari in Haryana. Good evening and welcome to the program. आप जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह जी, सवाल पूछिए। हेलो, आप जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हाँ सर, ऐसी बात है कि मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहता हूँ और थोड़ा सा सरल भाषा में बताने की कोशिश करें। सवाल पूछें, आपका सवाल क्या है म्यूचुअल फंड के बारे में? कैसे लगाए जाते हैं और लंबी अवधि के लिए कितने समय तक लगा सकते हैं? I think he is asking for a very basic kind of. और अपनी लंबे समय के पैसे के लिए एक अलग तरीके इक्विटी फंड में पैसा लगाएं। यहाँ पे आपका रिस्क डाइवर्स स्प्रेड हो जाता है। बाजार में अगर आप सीधा पैसा लगाएं तो ज्यादा जोखिम होता है। और कम समय का पैसा, 5 साल से पहले का जो पैसा है, उसको जरा ज्यादा बारीकी से ध्यान से देख करके किसी डेट फंड में पैसा लगाना चाहिए या हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए। और ये इस रेडियो प्रोग्राम में 1 मिनट में ये जवाब देने वाला सवाल नहीं है, तो जरूर इसके बारे में खुद जानकारी हासिल करिए। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान और गेहूं की खरीद का देश में नया रिकॉर्ड बना है। चालू खरीफ विपणन मौसम में सरकारी एजेंसियों ने 805 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है, जो पिछले वर्ष इसी मौसम में हुई खरीद से लगभग 10% अधिक है। चालू रबी मार्केटिंग सीजन में गेहूं की खरीद ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
इस सीजन में लगभग 414 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि इस खरीद से देश के 1 करोड़ 65 लाख से अधिक किसानों को फायदा हुआ और उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 2,33,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि सरकार ने चालू रबी और खरीफ मार्केटिंग मौसम में अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7,51,000 मीट्रिक टन से अधिक दाल और तिलहन की खरीद की है। बात कृषि की हुई तो मौसम की जानकारी भी श्रोताओं को हम देना चाहेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम हवाओं के मजबूत होने के कारण और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर चक्रवाती प्रसार के कारण अगले 4-5 दिन के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों और आसपास के देश के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियां तेज हो सकती हैं। Well, let's go across to Ghaziabad in Uttar Pradesh, where we have Ashu Duggal joining us on the program. Good evening and welcome to the program. Thank you, and a very good evening to all. I have two questions. One is, I just need an advice, an expert opinion. Is it right time for me to start with the SIP for pharmaceutical, explicitly for pharmaceutical funds, which is, one of my friends was recommending that since it may be because of the corona and other things like pharmaceutical and medical lines are coming up, so it may be a sensible thing to start explicitly on pharmaceutical funds which are available. So have you ever invested in a mutual fund or an equity fund before? Yeah, I have. Okay. So I'll give you a background of pharma funds. Pharma funds were struggling till 2019, and they were struggling for a different reason. They were struggling because most of our big pharma companies, they were facing an investigation by their global regulators of FDA in America and Europe and in many other countries. And they were struggling, as the scope of the investigation and the kept getting larger and larger. Now, most of these companies have been able to wriggle themselves out of this. They are out of this trouble, and they have become compliant with many of the norms which have been mandated by them. Not only that, the pandemic has also brought on the forefront the need or the demand for many of the other pharmaceutical framework or the which drives the business. So it might be, and that is definitely reflected in the numbers as well. If you look at the performance of the pharma fund, they have been a blockbuster. If you look at how they have done in the last 1.5 years, it has been they're the best performing ones. It's up about 52% in the last 1 year, and 3-year annualized return is 28%. So in fact, the recent performance of the pharma stocks has actually improved the long-term performance as well, though they were not doing so well till about 2.5 years back. I would say that if you think that you have very low exposure to pharma, then opportunistically buy, those are the kind of investment which pharma funds could be a good vehicle for targeted diversification. And why SIP? If you think that your portfolio has less, maybe buy less periodically, over the next 3-4 months, 5 months, so a certain part of your money can well invested there. But whenever you invest in a sector fund, it is generally not advisable because you are assuming a greater risk, less diversification, a focus, a vehicle of targeted diversification, which is generally undesirable. But if you want to really take a measured bet on a particular sector, these funds could be a good way of doing it. Do it. You don't need to do it in a very staggered way, the way you do SIP. दिल्ली से हम आमंत्रित करना चाहेंगे अब कामना जी को। कामना जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। Hi, good evening. My question is, I hold IDBI Equity Advantage Fund, SIP of a 3,000. I have it for almost 6 years. Mm-hmm. Should I hold it or book my profit and exit? If you don't need the money, then you should not.
it's a reasonably well performing, reasonably okay fund, and only of late it has not done exceedingly well. But you would have seen the performance. Its total return since its launch has been about 18%, which I think 18.5%, which is quite handsome. Right. Let's take a look at some of the news items as well. G7, the group of seven, a group of world's richest nations, have reached a landmark deal to back a global minimum tax of at least 15% on multinational companies. G7 finance ministers meeting in London also agreed that the biggest companies should pay tax where they generate sales and not just where they have a physical presence. The G7 ministers said they will commit to a global minimum tax of at least 15% on a country-by-country basis. We commit to reaching an equitable solution on the allocation of taxing rights with market countries awarded taxing rights on at least 20% of profit exceeding a 10% margin for the largest and most profitable multinational enterprises, the agreement added. दिल्ली से हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं पीसी गुप्ता। गुप्ता जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग कोई भी स्टिक लगाते हैं तो उसमें रेट फिक्स होता है, क्या इसमें इक्विटी मार्केट में क्या मॉर्निंग की रेट लगती है या इवनिंग की या मिड डे की? सर प्लीज, क्योंकि मैं 2-3 बार पूछ चुका हूँ, कोई मेरे को सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला। प्लीज। यस धीरेन्द्र। जब आप म्यूचुअल रंगा, जो मैं सवाल इनका समझ पाया हूँ कि जब आप SIP करते हैं तो आपको कौन सा वाला दाम मिलता है म्यूचुअल फंड? एग्जैक्टली वही पूछ रहे हैं। म्यूचुअल फंड का दाम तो दिन में एक बार ही जोड़ा जाता है, एक बार ही कैलकुलेट किया जाता है और वही आधार होता है। बाजार हालांकि पूरे समय खुला रहता है और जब भी बाजार खुला रहता है किसी भी समय अगर आप थ्योरेटिकली अपने शेयर के पोर्टफोलियो का दाम देखेंगे तो वो बदलता रहता है। उस पूरे 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक जब तक बाजार बंद नहीं होता है तब तक इसका दाम बदलता रहता है। लेकिन बाजार बंद होने के बाद म्यूचुअल फंड का NAV कैलकुलेट किया जाता है। म्यूचुअल फंड का NAV और वही आधार होता है आपके रिडेम्पशन का या परचेज का। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपके रुपए को उस NAV से भाग दिया जाता है आपको उतने यूनिट्स देने के लिए। अगर आप रिडीम करते हैं, अगर आपके पास कोई फंड पहले से है तो आपके पास जो यूनिट्स है उस दिन का NAV जो है उसके आधार पे आपको पैसा दिया जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में ये माने नहीं रखता है कि आपके पास एक ही दाम होता है और उसी आधार पे आपको पैसा आप लगा पाते हैं या निकाल पाते हैं। बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया धीरेन्द्र हम समझना चाहेंगे। जो FPI का निवेश शुरू हुआ है, शुरू के 4 जून के सत्रों में 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। अब तक उम्मीद करें कि जो बाजार में लिक्विडिटी है उसमें इस महीने अच्छा खासा निवेश होगा। प्रतिक्रिया जी। ये मनोज, ये बड़ी ये गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है जी। पर पिछले एक सवा साल में मैं देख रहा हूँ कि ये सिलसिला जारी है और कभी इसमें ये सिलसिला थमेगा या इसमें बदलाव भी आएगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि ये जारी रहना चाहिए। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से धीरेन्द्र जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। And we'd also like to thank all our callers for their active participation in today's program. And before we close, a quick look at the top stories. Foreign portfolio investors pump in nearly 8,000 crore rupees into Indian equities in just 4 sessions of June. Paddy and wheat procurement sets new record in the ongoing Kharif season, and Income Tax Department to launch new e-filing portal tomorrow. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.